ஒரே ஒரு 5 லிட்டர் இதய மந்த்ரா கடல் எண்ணெய் பேக் ஒரு மாசம் முழுசுக்கும் அத்தனை சமையலும் முடிச்சு விடலாம். இதய மந்த்ரா. நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. 2022ஆம் ஆண்டு ராஜ்யசபாவில் அளிக்கப்பட்ட பதிலில் 2019-21 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அபாயகரமான தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களின் குழந்தைகளுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு எந்த நிதியும் பெறவில்லை என்று அமைச்சகம் கூறியது. இந்த திட்டம் எஸ்சி மாணவர்களுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டு எஸ்சி மற்றும் பிறருக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டமாக மாறியது. 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் புதிய இணைக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கான நிதி மற்றும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையின் புள்ளி விவரங்கள் மாறிவிட்டன. அதன் அடிப்படையில் இந்த 2 திட்டங்களும் இணைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன மற்றும் இந்த புதிய திட்டம் அபாயகரமான அல்லது தூய்மையற்ற தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்களின் குழந்தைகளுக்கு பொருந்துமா மற்றும் அதன் விவரங்கள் என்ன? மேலும் அபாயகரமான தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் குழந்தைகளுக்கு மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் மற்றும் இல்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, खतरनाक कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए छात्रावास के बारे में, योजना के बारे में, उनकी छात्रवृत्ति के बारे में सरकार ऐसे सारे बच्चों के लिए और इसके साथ ही साथ कोविड काल के दौरान जिन बच्चों के माता या पिता का निधन हो गया था, दोनों का हो गया, दोनों में से किसी एक का हो गया, ऐसे बच्चों के लिए भी कोविड के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, उन बच्चों को शिक्षा निरंतर रूप से जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर फंड प्रारंभ किया गया। और जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की चर्चा माननीय सदस्य के द्वारा की गई है, वो अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को दी जाती है। इसके साथ ही साथ ओबीसी के छात्रों को भी दी जाती है। डीएनटी ईबीसी के छात्रों को भी, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को, उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान किया जाने का प्रावधान किया गया है। और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक में 21-22 से 24-25 तक 26,57,123 छात्रों के लिए 2,899.8 करोड़ रुपया दिया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 2022-23 से 24-25 तक 10,40,619 छात्रों के लिए 219.42 करोड़ रुपया दिया गया। इसी तरह से पीएम यशस्वी योजना में हमारे ओबीसी ईबीसी डीएनटी के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से तमिलनाडु राज्य में 2021 से 25-26 तक 151 करोड़ 57,32,000 रुपये की राशि 21.89 लाख छात्रों को प्रदान की गई। और पोस्ट मैट्रिक योजना में 1920-21 से 1925-26 तक 637.30 करोड़ रुपए की राशि 20.62 लाख छात्रों को प्रदान की गई। Honorable member supplementary. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு அமைச்சகம் அளித்த பதில் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு இன்னும் ரூபாய் 184.23 கோடி நிதி கிடைக்கவில்லை. கூடுதலாக 2020-21 ஆண்டில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலத்திற்கு எந்த நிதியும் கிடைக்கவில்லை. இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுக்கு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட முழு தொகையும் பெறவில்லை என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு தெரியுமா? அப்படியானால் இதற்கான காரணங்கள் மற்றும் இதை நிவர்த்தி செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களை அறிய விரும்புகிறேன். மேலும் ஒன்றிய அரசு 25-26ஆம் ஆண்டில் 4 புதிய என்ஜிஓக்களுக்கு முதியோர் இல்லம் அமைக்கவும் அதை முறைப்படி பராமரிக்கவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இதற்காக எவ்வளவு தொகை ஒன்றிய அரசு அளித்துள்ளது? அந்த 4 என்ஜிஓக்களின் பெயர் என்ன? அது எங்கு அமைய இருக்கின்றது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, तमिलनाडु राज्य की कुल जनसंख्या 7,21,47,030 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 1,44,38,445 है, जो कुल जनसंख्या का 20.1% है। और तमिलनाडु देश के उन 5 टॉप राज्यों में से है जहां पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्णतः राशि उठाई गई है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में तमिलनाडु में 2021-22 से अब तक आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 555.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और तमिलनाडु में 2918 गांव में से 2915 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। वहां पर 6,821 कार्य किए गए और 32.81 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। उन्होंने जो 4 एनजीओ के संबंध में प्रश्न उठाया है, वो 4 एनजीओ की सूची और स्थानों के बारे में उनको अवगत करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अनुदान सहायता के अंतर्गत 2021 से 2022 तक कृषि मृदा संरक्षण, खाद्य संस्करण, पशुपालन आदि योजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार को 358.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और इससे 22,700 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक में इसी में आदर्श ग्राम योजना में 2021-22 से अब तक तमिलनाडु में 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, 4 छात्रावास स्वीकृत हुए और 300 छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो रही है। श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकरण के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड से किस तरह की मदद दी जा रही है? तमिलनाडु का पूछ रहे हो, बिहार का पूछ रहे हो आप? सर, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो पूरे देश की बात है। अच्छा, मैंने कहा